example can be minimum support price. The traders would like the government to keep the support prices to be on the lower side, but the farmers would want the government to keep the support prices on the higher side, so that they can get a good money for their produce. So this is the first example of conflicting developmental goal. The second example of conflicting developmental goal can be the dams. Dams में क्या होता है, because dams are considered as or seen as a symbol of development for everyone, but there is a section of people who do not want the dams to be built because their habitat is taken away from them. Those are the tribal peoples, right? So dams can be development for everyone, but it cannot, the dams are not development for the tribal people. So this is the other example of conflicting developmental goal, right? Now after that, yes, because their land gets submerged. Good. So what happens that these in दोनों concepts के बाद we read about income as the major developmental goal, but we also saw that income is not the only developmental goal or the only developmental goal which everyone would like to achieve, but rather people want a mix of goals. What do they want? They want a mix of goals. They want, along with materialistic things. You know what are materialistic things? Things which can be bought by the money, like car, TV, AC, house, clothes. These are all materialistic things, right? But there are certain non-materialistic things also which are considered one of the important aspect of development. What are these non-materialistic things? As somebody has rightly, भैया के पास होगा ये दे तो okay, let me change the settings so that I can mute everyone. यार दूगो कहाँ है बेटा ये किसने अपने आप को म्यूट रखा हुआ है? दूगो होगा, ये एक और होगा ना, पता नहीं यार। Has everyone noted? तो पुराना वाला लिया है। All right, so let's start again. Okay, so what happens that in the materialistic and non-materialistic things, along with materialistic things, people also want non-materialistic things, right? So what happens that on achieving only the materialistic things would not be the only developmental goal for everyone. People would also want the non-materialistic things to be achieved along with the materialistic thing. Now, what are these non-materialistic things? Can anybody tell me what are non-materialistic things? Like freedom, equality, no discrimination, respect. Yes. What else? Yeah, good working conditions, climate. So these are all non-materialistic things. Climate is something which is very natural. So हम लोग हाँ, health, better wages is materialistic. Mantaj, मैं non-materialistic की बात कर रही हूँ. Yes, security. So materialistic things के साथ लोगों को non-materialistic things भी चाहिए साथ में. ठीक है? So once developmental goal can never only be the materialistic things, but the non-materialistic things also are included in the developmental goals. So for development, people look at a mix of goals, right? So they look at a mix of goals. उसके बाद हमने बात की थी कि कैसे तीन states को compare करके हमने पता किया था उनका
पहले हमने पता किया था कि कैसे कंपेयर करनी है डेवलपमेंट, हाउ कैन डेवलपमेंट बी कंपेयर, राइट। तो डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया दिया है पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम का बेटा क्लाइमेट मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक में नहीं आता है। मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो मैन मेड हैं, क्लाइमेट इज नेचुरल, ठीक है। नेचुरल चीजें आप इसमें मत काउंट कीजिए, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जो मैन मेड हैं, ठीक है। जैसे मटेरियलिस्टिक में आ गया आपका घर, गाड़ी, फर्नीचर, कपड़े, जितनी भी आपकी लग्जरी आइटम्स हैं या एसी, पंखा, जितनी भी चीजें हैं। और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों में आ गया आपकी फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, लव, डिवोशन, ये सारी चीजें, ठीक है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, नॉट क्लाइमेट बट द वर्किंग एनवायरनमेंट, कितना कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट है, कितना सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आ गए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे थे अपनी पर कैपिटा इनकम की। तो वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक हैज केप्ट per capita income as the criteria for comparing different countries, right? Now depending upon per capita income, what is per capita income? It is the average income of a person of a country, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या, कैसे लेते हैं हम? टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। This per capita income is also known as average income, right? तो average income जो है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो या पर कैपिटा ऑलराइट। सो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली हमारी जो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्राइटेरिया रखा है रिच और लो इनकम कंट्रीज या पुअर कंट्रीज का, ठीक है। Am I audible and visible to everyone? गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया रखा है रिच कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज का। रिच कंट्रीज के लिए 12,000, अब लेटेस्ट आई एम टेलिंग यू द डाटा ऑफ 2013 और 14, उसके अकॉर्डिंगली वीडियो में बेटा एम आई विजिबल टू एवरीवन? समझ आ रही है सबको जो मैं बोल रही हूँ? ओके, सो हाँ, तो लो जो रिच कंट्रीज हैं वो 12,256 यूएस डॉलर्स एनुअल अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो रिच कंट्रीज में आ रहे हैं। और लो इनकम कंट्रीज के लिए 1,018 जो यूएस डॉलर्स हैं वो कंट्रीज हैं। और हमारे इंडिया जो है इट स्टैंड्स एट ऑलमोस्ट 1,800 यूएस डॉलर्स। तो इंडिया ऑलमोस्ट इज अ बिट अबव देन द लो इनकम कंट्रीज, थोड़ा सा ही ज्यादा फर्क नहीं है इंडिया में और उसमें। बट as we can see that averages although provide a useful medium for comparison, they also have a limitation. What is the limitation of using average? Is that they hide disparities. डिस्पैरिटीज को हाइड करते हैं ये एवरेज इनकम जो होती है, ठीक है। डिस्पैरिटीज को हाइड करने का मतलब है कि उसमें अगर कोई बहुत हाई इनकम ले रहा है और कोई बहुत लो इनकम या बिल्कुल इनकम नहीं कर रहा है तो वो सारे के सारे सेम कैटेगरीज में लाके वो खड़े कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, राइट।
बेटा अगर आपके पास 955 यूएस डॉलर्स वाला अगर लो इनकम कंट्रीज है तो वो पुराना बुक है। आप सबको मैं लेटेस्ट डाटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू सेंड यू द लेटेस्ट डाटा ऑफ दिस चैप्टर डेवलपमेंट का, राइट। तो क्या होता है कि हमारा जो ये जो कंट्रीज हैं जिसमें हम पर कैपिटा इनकम लेके चलते हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो एवरेजेस या जो पर कैपिटा इनकम है वो डिस्पैरिटीज हाइड कर देता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एवरेज। नाउ आफ्टर दैट वी लर्न दैट वी कंपेयर्ड 3 स्टेट्स, जिसमें कि एक स्टेट हरियाणा जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी, बट फिर भी वो डेवलप नहीं था। क्यों डेवलप नहीं था? क्योंकि उसमें बाकी चीजें जो थी वो अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं की जा रही थी पब्लिक को। वो क्या चीजें थी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां का बड़ा हाई था, ठीक है, और प्लस उसका जो नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट है वो बड़ा लो था। तो इसका मतलब हेल्थ और एजुकेशन में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही थी वो स्टेट, राइट। इसके कंपैरेटिवली Kerala, which had a lower per capita income, but as far as its health and education is concerned, Kerala had a lower infant mortality rate than Haryana and a higher literacy and net attendance ratio. That means Kerala was providing or is providing better facilities to its people, to the people of its state, right? That means the government of Kerala is paying full attention to the development of the people, right? सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है, उसके साथ साथ एजुकेशन। और बेटा लेस एजुकेशन का मतलब है, देखो आप पिछली बार भी ये बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे और अभी भी आपको ये डाउट है कि अगर एक स्टेट या एक कंट्री के पर कैपिटा इनकम हाई है लेकिन फिर भी वहां एजुकेशन दैट इज लिटरेसी रेट और वहां की हेल्थ पुअर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है बेटा क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ एक या कुछ रिच लोगों की इनकम पे के बेसिस पे हाई आ सकती है, ठीक है। तो एवरेज इनकम लेंगे तो वो लाखों करोड़ आ जाएगी मेरे इस रीजन के लोगों की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम हाई आने का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग डेवलप्ड हैं वहां पे, ठीक है। वो जो बिल्कुल थोड़े से लोग हैं उस रीजन के, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास हेल्थ है और उनके पास पैसा है, बाकी सारे लोगों में ये सब नहीं मिल रहा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एवरेज से तो हमें पता चल गया कि क्योंकि वो 20,000 करोड़ बाकी सारे लोगों में बराबर के बंट गए एज पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली में नहीं बंट गए, सिर्फ एवरेज निकालने के लिए हमें लगा कि सब इस लेवल का कमा रहे हैं, सपोज 10 लाख रुपए पर एनम का कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से कई लोग थे जो सिर्फ 10,000 कमा रहे थे, ठीक है, और वो लोग प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो यूजफुल मीडियम नहीं है डेवलपमेंट नामने का। इसी के साथ साथ हमें उनकी हेल्थ और उनके लिटरेसी रेट को भी देखना होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसी के साथ आपको एक कंसेप्ट है बीएमआई, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स का। बीएमआई एक्चुअली में ज्यादा नहीं आता है आपके एग्जाम्स में, बट बुक में दिया हुआ है इसीलिए हम पढ़ लेंगे क्योंकि एक दो बार पूछ भी लिया हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? आप लोगों को पता ही होगा, कई बच्चे क्या करते हैं, जो बहुत पतले होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, उनको कैसे देखा जाता है कि कैसे पता चले कि इनको नरिशिंग जो मिल रही है, नरिशमेंट जो मिल रही है कैलोरीज में। आपको पता है हमारे जो न्यूट्रिशन लेवल है वो हमेशा कैलोरीज में नापा जाता है। No, it is not basic metabolic index. No, BMI is body mass index. Body mass index, ठीक है, ये सारे ध्यान रख लो। दिस इज नॉट बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स और कुछ अलग अलग बोल रहे हो, बड़ा इजी नाम है इसका, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट अपॉन वेट स्क्वायर, हाइट अपॉन वेट स्क्वायर लेते हैं,
इट इज यस। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमारे पास उसकी वैल्यूज आती हैं, तो अगर वो 18 से कम है, इफ इट इज लेस देन 18, yes, it is weight upon height square. W body mass index is weight upon height square. Weight upon height square, right? अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया होगा. It is weight upon height square. अगर weight upon height square करके आपकी जो वैल्यू आ रही है, it is less than 18. Yes, height is measured in meters and weight is measured in kilograms. ठीक है, मीटर्स और किलोग्राम्स में. अब हाइट और वेट स्केल, अगर आपकी वैल्यू जो है वो 18 से कम आ रही है, ठीक है, इफ द वैल्यू इज लेस देन 18, मैंने उल्टा लिया, इफ द वैल्यू व्हिच इज कमिंग, सपोज x आ रही है वैल्यू, वो अगर 18 से कम है तो वो माल नरिश्ड है बच्चा, माल नरिश्ड, मतलब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. और अगर वो 25 से बड़ा है तो इसका मतलब वो बच्चा ओवरवेट है, ओवरवेट है, राइट? माल नरिश्ड है अगर 18 से कम आ रही है, और ओवरवेट है अगर 25 से ज्यादा वैल्यू आ रही है. दिस इज बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इज द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द न्यूट्रिशनल लेवल्स ऑफ अ पर्सन, न्यूट्रिशनल लेवल्स, राइट? Is it weight upon height square? Yes. तो अगर हमारी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर 18 से कम आ रहा है बेटा, तो अ चाइल्ड और अ पर्सन इज माल न्यूट्रिशन, राइट? और अगर वो 25 से ज्यादा आ रहा है तो the person is overweight. I think there is not much to understand in this. तो बॉडी मास इंडेक्स ये है. उसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़नी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. What is human development index? It is given by United Nations Developmental Program, UNDP. ठीक है, यस. तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया दिया था डेवलपमेंट मेजर करने का, उसी तरह यूनाइटेड नेशंस ने क्राइटेरिया दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का, राइट? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाउ? Human development index is the criteria in which the per capita income, then health and education levels of a region is measured. ये तीन चीजें मेजर करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम. ठीक है, और तीनों चीजें मेजर करके हम रैंक्स, ये जो यूनाइटेड नेशन है ये कंट्रीज को रैंक देता है, ठीक है, रैंकिंग देता है. और इंडिया की रैंकिंग है 130th रैंक आउट ऑफ 180. 180 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन ने रैंक किया हुआ है. हाँ, बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है ना. तो 180 कंट्रीज में से इंडिया को रैंक दे दिया है 130. तो इसका मतलब इंडिया का रैंक अच्छा है कि बुरा है? बहुत खराब है. इंडिया इज लैगिंग फार बिहाइंड इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, हमारे आसपास के जितने कंट्रीज हैं उसमें श्रीलंका का बेस्ट है HDI. श्रीलंका का 70. Yes, the human development index of Sri Lanka is 75. इसकी रैंकिंग है 75. तो इतनी छोटी सी आइलैंड कंट्री हमारे इतने आगे निकल गई है. वो क्यों निकल गई है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वो क्यों निकल गई हमसे आगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रखी है लोगों को. पब्लिक सर्विसेज होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं जब लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. नाउ व्हाई
this human development index is so much dependent upon the public facilities. देखो केरला में जब हमने देखा कि इतना अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, हालांकि उनका पीसीआई पर कैपिटा इनकम कम था, तो फिर भी केरला में इतनी डेवलपमेंट हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, स्कूल्स, टीचर्स, राइट. तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in the beta gross domestic product. GDP is something else. Can we take up in this question in the next chapter, your sectors of Indian economy? वहां पर मैं आपको GDP के बारे में बताऊंगी, ठीक है. अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं. आज का हमारा मोटो है ये चैप्टर कंप्लीट करना. So almost half of the time is over. So let's कंप्लीट दिस चैप्टर. जीडीपी के बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर आपका डील ही जीडीपी से करता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. तो ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि जितनी पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, उतना जो कंट्री है वो HDI में उसका रैंक अच्छा रहेगा, ठीक है. हमारी गवर्नमेंट भी काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है लोगों को, लेकिन the conditions of the facilities which are being provided to the people, they are not very good, ठीक है. जब तक वो कंडीशन सारी अच्छी नहीं हो जाती, सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाती, और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है. अगर हम 100 स्कूल खोल के दे रहे हैं लोगों को और 100 स्कूल में 50 टीचर भी नहीं है, ठीक है, अगर 100 स्कूल्स में 50 टीचर भी नहीं है, तो क्या वो प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. और व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज? बिकॉज एवरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड टू बाय because every person cannot afford to buy things. अगर एजुकेशन पढ़ना है किसी बच्चे ने, तो प्राइवेट स्कूल में जाके हर कोई एजुकेशन को खरीद नहीं सकता है, ठीक है. सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन चीजों को. अगर किसी को बीमार हो गया है तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकते हैं. तो गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, ठीक है. गवर्नमेंट को अंदर हमारे उसके लिए आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है. इसके बारे में डिटेल्ड दोबारा मैं बोलूंगी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिटेल हम दोबारा नेक्स्ट चैप्टर में आपका बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं. तो अभी हम इतना पढ़ लेते हैं कि HDI क्या है और BMI क्या है, ठीक है. इसके अलावा अब लास्ट टॉपिक जो बचा है, जो छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर we people are very happy to see that we are being provided with electricity, we have cars and we have ACs at our places, and we are using all these energies, right? Just give me one moment. There are certain things. बच्चों ने चैट किया है, मैं पढ़ लूं. अभी मैंने मिस किया है कुछ. Okay. Education in government and private school is not at all different. Don't you know that? हमारा जो सिलेबस है वही केंद्रीय विद्यालय में भी चल रहा है. केंद्रीय विद्यालय is a government school, right? ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है उनकी फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड होती हैं वो एट पार होती हैं प्राइवेट फैसिलिटीज के, ठीक है. द ओनली डिफरेंस हियर इज कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में खासकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये क्या कहते हैं, ये गैप नहीं है क्वालिटी में, लेकिन हमारे इंडिया में अभी क्वालिटी में गैप है प्राइवेट और पब्लिक फैसिलिटीज में,
ठीक है, अभी बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पॉपुलेशन आल्सो वी कैन से, एंड इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज आल्सो वेरी लो, हम ज्यादा रिच भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम पब्लिक फैसिलिटीज क्योंकि फ्री प्रोवाइड करनी होती है और गवर्नमेंट के पास इसके पैसे नहीं आते हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लोगों को या गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अभी पब्लिक फैसिलिटीज देना ही बंद कर दे। अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज देना ही बंद कर देगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाके अपना इलाज करवाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इन द पब्लिक फैसिलिटीज। आप देख सकते हो पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक पार्क्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, गुड स्कूल्स, और स्कूल्स में एजुकेशन की लेवल, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। कुछ टाइम के बाद जब हमारे इंडिया में भी अच्छी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी मिलना शुरू हो जाएंगी, तो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर तो अच्छा होगा ही, जब आप एक इलाज जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फ्री कर रहे हैं और उसका प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी में तो फर्क देंगे ही, ठीक है। एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री का पढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूल में उससे फीस ली जा रही है इतनी सारी, तो ऑब्वियसली एजुकेशन पढ़ाने के तरीकों में डिफरेंस तो होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट फैसिलिटीज की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, सो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। I think I am making my point very clear here. पब्लिक फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को, ताकि लोगों की बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, आपको पता है ना जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, जो राशन प्रोवाइड करता है गरीब लोगों को, उसके बिना कैसे काम चलेगा? लोगों को अगर 100 रुपए किलो चावल खरीद के खाने पड़े और 40 रुपए किलो आटा खरीद के खाना पड़े, तो आपको लगता है गरीब लोग सरवाइव कर पाएंगे हमारी दुनिया में? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट का, और जितनी ज्यादा और जितनी बेहतर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, कंट्री उतना ही ज्यादा राइज करेगा, उतना ही ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका बढ़ेगा, अच्छा होगा, रैंकिंग अच्छी होगी, कंट्री ज्यादा डेवलप करेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आ गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, सस्टेन करने का मतलब क्या होता है कि उसकी लेवल जो है वो जिस लेवल तक हम पहुंच गए उसे सस्टेन्ड रखें, बचा कर रखें, उससे नीचे ना गिर जाए, ठीक है। अब हम जो डेवलपमेंट पे चल रहे हैं, हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन ये डेवलपमेंट का ग्राफ जो है वो ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं डेवलप करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ना, तभी तो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज चलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तभी चलेंगी जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल मिलने से, पावर मिलने से, एनर्जी मिलने से हमारी इंडस्ट्रीज चलेंगी, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे हमारी पूरी इकोनॉमी चलेगी। Why private companies don't provide electricity and water? They are going to charge a lot. बच्चे प्राइवेट कंपनीज को अगर हम दे दें, आपने अभी पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होगा, एक छोटा सा टॉपिक है आपके पॉलिटिकल साइंस में कि बोलिविया में क्या हुआ एक बार कि वाटर राइट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, प्राइवेटाइज कर दिया गया वाटर फैसिलिटी को, ये बोल के कि अब आपको बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी पानी की, इसीलिए हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइज करने के बाद लोगों को एक महीने का पानी का बिल, जहां पे लोगों की एक महीने की तनख्वाह जहां पे 10,000 थी, वहां पानी का बिल ही 5,000 आ रहा था उनको, ठीक है। तो क्यों इतना ज्यादा हो गया? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर का क्या मेन एम होता है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। उनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है,
ठीक है, इसीलिए वो लोगों से पैसे उतने ही लेते हैं जितना कि उन्हें काम चलाने के लिए चाहिए, ना कि प्रॉफिट। उन्होंने पैसे कमाने नहीं है लोगों से, ठीक है। महीने का 100 रुपए आपका पानी का बिल आता है, वहीं अगर 100 रुपए की जगह आपका महीने का पानी का बिल 5000 आ जाए, डू यू थिंक कि ऑल द पीपल विल बी एबल? जो बेसिक फैसिलिटीज होती है ना, वो हमेशा गवर्नमेंट को उस रेट पे देनी चाहिए जिस रेट पे कॉमन पीपल, कॉमन मैन अफोर्ड कर सके, ठीक है। वो चोर इलेक्ट्रिसिटी और पानी चोरी करना वो अलग चीजें हैं बेटा। हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइवेट फैसिलिटीज क्यों दी जाती हैं लोगों को, या पब्लिक फैसिलिटीज क्यों दी जाती है, प्राइवेट फैसिलिटीज क्यों नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते, ठीक है। अगर आप सोचो कि रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया, जहां 100 रुपए आज जनरल कंपार्टमेंट की जो टिकट है वो शायद 100, 150 या 200 रुपए होगी यहाँ से दिल्ली जाने की, अगर वो प्राइवेट कर दिया गया, मेट्रो इज नॉट प्राइवेट, इवन मेट्रो इज नॉट प्राइवेट, नो, मेट्रो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो क्या है कि जब उनको उनको जहां पर हम 200 रुपए की टिकट लेके जो कॉमन लोग हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, उनको अगर 2000 देना पड़ा तो उनके लिए ट्रेवल करना कितना मुश्किल होगा, समझ आ गया। तो आई थिंक द डिस्कशन शुड स्टॉप हियर दैट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्यों है, कहाँ है। इतना समझ लीजिए बेटा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो गवर्नमेंट को देना बहुत जरूरी होता है इन ऑर्डर to provide facilities to all the people without any discrimination, right? और पब्लिक प्राइवेट फैसिलिटीज इसीलिए सबको प्रोवाइड नहीं की जाती या सारे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जबरदस्ती नहीं कह सकती भी आप फ्री का हॉस्पिटल खोल दो, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स कम टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो जिस रेट पे हम डेवलपमेंट, जिस पेस पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पेस पे डेवलपमेंट नहीं हो। बेटा listen everyone, I want everyone to stop discussing the public and private sector now, और लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जिस पेस पे डेवलपमेंट हो रही है ना उसी पेस पे डेवलपमेंट रहे तो उसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस सपोज इस डायरेक्शन पे डेवलपमेंट हो रही है तो इस डायरेक्शन पे डेवलपमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि उनको रिसोर्सेज के इनपुट मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, टिम्बर, व्हाटएवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वो इनको फैसिलिटीज मिल रही हैं और फिर ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन कहाँ, जहां पर भी इनसे वो रिसोर्सेज ले लिए जाएंगे तो डेवलपमेंट का ग्राफ नीचे का हो जाएगा, ठीक है, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है एक्चुअली कि जो जिस पेस पे हम डेवलप कर रहे हैं उसी पेस पे हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी डेवलप करें, और हमारी फ्यूचर जनरेशन उसी पेस पे डेवलपमेंट तभी कर सकती है जब हम आज अभी जो डेवलपमेंट चल रही है वहां पे रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूटिलाइज करें, ठीक है। judicious use of resources so that our future generations can also use them is sustainable. है कि वीडियो बंद हो गया बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, सो हम अगर हमें डेवलपमेंट इसकी लेवल्स को सस्टेन करना है
तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचना है और रिसोर्सेज ऐसे यूज करने हैं कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ बचे, ठीक है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी हुई है आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस। हम जो आज रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ये हमें इनहेरिटेड नहीं है, हमें कोई फोरफादर से इनहेरिट होके नहीं मिले हैं, लेकिन हम वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को यूज करने हैं आगे, उनको हम पहले यूज करते जा रहे हैं। तो इतने खराब हम ना बने, इतने गलत हम ना बने कि हम सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर ले और उनके लिए कुछ ना छोड़ें, ठीक है। मैं बहुत गर्मी है, हम बाहर खेल रहे हैं मैं और मेरा फ्रेंड, और फुटबॉल खेल रहे हैं और बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है और बॉटल में पानी है। मैंने अपने फ्रेंड से पानी मांगा, मुझे पता है उसको भी प्यास लगी होगी, लेकिन मैंने अगर अपने फ्रेंड से पानी मांगा और पूरा पानी पी लिया और मैं हंस रही हूँ, हाँ 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 देखा मैंने पूरा पानी पी लिया, डू यू थिंक दैट इज समथिंग गुड आई हैव डन? नो, बहुत गलत किया मैंने। आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन। तो मुझे अगर मुझे प्यास लगी थी मैंने थोड़ा सा पानी पीना था और बाकी उसके लिए छोड़ देना चाहिए था। यही है एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़े रिसोर्सेज यूज करो, इस तरह से यूज करो कि अगले हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ बच जाए यूज करने के लिए, ठीक है बेटा। डेवलपमेंट लक्ष्य, सी माय योर क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल जस्ट गेट बैक टू योर क्वेश्चन। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट का रेट, नो we don't have to give priority to ourselves first। हमें ये देखना है, ये तो सेल्फिशनेस होगी बेटा। हमें ये देखना है कि आज के टाइम पे देखो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और हमें ये देखना है कि हम सबको पता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिन्यू नहीं हो रहे, उनको जुडिशियसली यूज करना है, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनसे मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करनी है। तभी तो हम आजकल शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स पे, सोलर पैनल्स पे, यस सोलर पैनल्स पे, इलेक्ट्रिक कार्स पे, हाइड्रोजन कार्स पे, ये सारे हमारे प्रोसेस क्यों चल रहे हैं, विंड मिल्स पे, यस। तो ये सारे प्रोसेस हमारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे जो बेसिक एनर्जी रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल, कोल, समझ आ गया? अगले 50 सालों में सारे हमारे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा करना है, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी करनी है ताकि डेवलपमेंट लेवल्स जो हैं वो सस्टेन्ड रहे, ठीक है। समझ आया सबको? और लक्ष्य, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर इट? तब तक आप ये समझ, अच्छा एक और एग्जांपल है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर आजकल क्या हो रहा है कि हम ग्राउंड वाटर, आप सबको पता है वाटर टेबल का सबको पता है ना, वाटर टेबल इज द लेवल एट विच द वाटर इज फाउंड अंडर द ग्राउंड। आजकल वाटर टेबल जो है वो नीचे नीचे जाता जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज हो रहा है। एक्सेसिव यूज क्यों हो रहा है ग्राउंड वाटर का? एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पे ज्यादा हो रही है साफ पीने के पानी के लिए। दूसरा, ऐसी स्टेट्स जहां पे नेचुरली, हाँ जी, हैंडपंप से सारा पानी हम निकाल रहे हैं, चलो पीने के लिए तो कितना पानी यूज होगा, लेकिन आजकल क्या है कि इरिगेशन के लिए भी हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हाँ, आपने ट्यूबवेल का सुना होगा कई बार, ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं खेतों को। तो वो ट्यूबवेल क्या है? ग्राउंड वाटर निकाल के इरिगेट कर रहे हैं अपने फील्ड्स को, विच इज रॉन्ग। समझ आया? वो जो गलत है, हमें कैनाल से इरिगेट करना चाहिए, ना कि ग्राउंड वाटर से इरिगेट करना चाहिए अपने फील्ड्स को। तो गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटीज बनानी चाहिए जिससे कि कैनाल्स लोगों तक पहुंचे। कैनाल्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल कैनाल्स, छोटे रिवर्स से छोटे छोटे कैनाल्स निकाल के दे दिए, डैम से छोटे छोटे
तभी मैं बेटा डेवलपमेंट को, हाँ लक्ष्य, आई गॉट योर क्वेश्चन अगेन। डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलपमेंट नहीं करते, भाई डेवलपमेंट को छोड़ो, हम डेवलपमेंट रोक देते हैं, अभी जितनी डेवलपमेंट होगी वहां रुक जाते हैं और आगे डेवलपमेंट करना बंद कर देते हैं। इतना ही बड़ा हमारे लिए डेवलपमेंट, और जितने रिसोर्सेज होंगे वो बच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। नोबडी कैन स्टॉप डेवलपमेंट। ठीक है, अगर कल को फ्लाईओवर बनना है फ्रॉम गांधीनगर टू कुंजवानी तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उसकी जरूरत है। ठीक है, हम गांधीनगर से कुंजवानी तक अगर फ्लाईओवर बनेगा तो उससे वो किसी रीजन से बन रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब वो बनने दो, ठीक है, उसमें जो रिसोर्सेज यूज होने दो, लेकिन हम बस ये देख सकते हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट। उसका क्या, हेलो जी, दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन बनी थी वो क्यों बनाई गई थी, उसका मतलब क्या था? उसका मेन मतलब या मेन मकसद जो था, मेन गोल जो था, वो था कि लोग जो है वो मेट्रो से ज्यादा ट्रेवल करें और कार्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। इससे पेट्रोल भी बचेगा और पोल्यूशन भी कम रहेगा। ठीक है, उसी तरह जम्मू में भी मेट्रो का आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये यही बताते हैं कि कैसे जो है वो डिपेंडेंसी हमारी कम हो, टाइम सेव हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो, हमारा टाइम सेव हो, हमारे रिसोर्सेज सेव हो। ठीक है, अभी आयुष्मान एंड आई हैव बीन looking at your discussions, we are not here to discuss कि boycott China or not, right? हमारा जो topic है, let us restrict to a topic only. I don't want such things to happen in my class again, right? boycott China से पहले we have hundreds of things. हम घर में बैठे ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए। तो let us not discuss that, right? तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि हमारी अगली जनरेशन तक हमारी जो डेवलपमेंट है वो सेम लेवल पे डेवलपमेंट होती रहे। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द चैप्टर डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं बेटा। इफ यू डोंट हैव any question, take over cab system and make it basic utility. बेटा कैब सिस्टम जो है, टैक्सी सिस्टम जो आप कह रहे हैं, टैक्सी सिस्टम इज नॉट बेसिक यूटिलिटी। गवर्नमेंट ने लोकल बसेस चला रहे हैं ना, आप देखते हो यहाँ पे, अभी तो चलो कोरोना के कारण बंद हो गई, लेकिन हम देख रहे थे गवर्नमेंट ने अपनी बसेस चलाई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी लेवल पे जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, और धीरे धीरे लेट द गवर्नमेंट वर्क। जब तक गवर्नमेंट काम कर रही है तब तक उस तरह से जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है उनको करने दो, जैसे हम काम कर सकते हैं हमें वैसा करना चाहिए। ठीक है, दूसरों को बताने से पहले हमें खुद देखना चाहिए, कि हम कितना एनर्जी रिसोर्सेज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम अगर एसी को 16 डिग्री पे लगा के सो रहे हैं तो हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एसी को 16 डिग्री पे लगा देते हैं रात को, और रात को रजाई लेके सोते हैं कि बड़ी ठंड होगी है। Why don't we keep the temperature of AC at only 25 degree? Let the temperature at a place be very tolerable so that we can sleep well. It should not be hot. ठीक है, तो क्या फायदा है जब हम एक एसी से इतनी बिजली खर्च कर रहे हैं? Are you getting my point? तो यही छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है कि कैसे इंटरनेट यूज करने से बेटा कोई रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे हैं दुनिया के। बिजली को हमें प्रोटेक्ट करना है, नहाते वक्त शॉवर यूज नहीं करना है, हमें बकेट पानी, अगर हम बकेट से नहाएंगे वी आर गोइंग टू यूज 5 times मिनिमम लेस वाटर। ठीक है, 5 times हम पानी कम यूज करेंगे अगर हम बकेट से नहाएंगे। पानी बचाना है, बिजली बचानी है, पेट्रोल बचाना है। ठीक है,
अगर हम सुबह स्कूल बस से आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हमारे पास स्कूल बस नहीं है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे हम 3-4 लोग मिलके एक जगह जा पाए, जहां अगर हम जा रहे हैं तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज रिन्यूएबल, फिर वो तो वाटर भी रिन्यूएबल है, फिर हम क्यों कहते हैं सेव वाटर? My basic question to you is, why do we all want to save water, although water is a renewable resource? Because the amount of the rate at which water is replenished, the rate at which water is replenished is far less than the rate at which we are consuming the water. समझ आया आपको? अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर कम तो है, लेकिन जितना भी है वो रिन्यूएबल है, ठीक है। लेकिन हम उनको फिर भी सेव करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि the rate at which water is renewed is very less than the rate at which we consume water, ठीक है। तो वाटर शॉर्टेज ना हो जाए। वाटर तो रिन्यू कर लेगा अपने आप को कभी ना कभी, लेकिन वाटर शॉर्टेज से बचने के लिए हमें जो है वो पानी को सेव करना है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास लिमिटेड आती है, समझ रहे हो? लिमिटेड आती है। तो उस लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम सारे मिलजुल के बांट के एक प्रॉपर यूज करें, तो उससे क्या होगा कि सबके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए प्रॉपरली, ठीक है। और जो कट लगते हैं दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाइट बंद हो रही है, अगर हम अपने एसी, अपने गीजर को नहाने से 10 मिनट पहले ऑन करना चाहिए। ये नहीं कि रात को पूरी रात गीजर चल रहा है, पानी उबल रहा है और सुबह हमने नहाना है, ठीक है। उसी तरह एसी जो है, एसी का टेम्परेचर इतना रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो अंदर का जो क्लाइमेट है वो बस इतना रहे कि हमें गर्मी ना लगे, थोड़ा ठंडा ठंडा, बस 25 डिग्री से कम नहीं करना चाहिए। इससे प्रेशर पड़ता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेट्रोल बचाओ, यही छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे तो हमारा जो देखो, I'm working in AC, my AC is at 25 degree and I'm feeling quite comfortable here, right? उसी तरह आप घरों में भी अगर अपने AC को 16 से 25 पे ले आओगे, you are going to save lots and lots of electricity, right? So this completes our chapter. अब मुझे एक बात बताइए, do you want me to discuss the question answers or shall we move to the next chapter? हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा, और रिवीजन भी हमने इस चैप्टर की काफी कर ली है, बहुत सारा पढ़ लिया हमने इस चैप्टर के बारे में। हाउ एम आई गोइंग टू स्टार्ट अप इज, हम नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर दें, पावर शेयरिंग। ओके, आई विल नॉट सी, ऐसे तो बेटा आप जितने बच्चे हैं उन सबके अलग अलग व्यू होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो इट्स नॉट सिविक्स। सबसे पहले तो आप उसको समझो कि हम अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। हम पहले एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते। व्हाट आई वांटेड वाज कि हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स के दोनों चैप्टर कंप्लीट करें, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी 2 चैप्टर आएंगे। आपका हाफ टर्म जो है वो, यस, सिलेबस इज रिड्यूस्ड, सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड अ लॉट, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। आपके पास नया सिलेबस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं सोच रही थी कि हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करके इकोनॉमिक्स बंद कर देंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के दोनों चैप्टर करके पॉलिटिकल साइंस बंद कर देंगे। शुड वी गो लाइक दिस और यू वांट मी टू स्टार्ट अप विद पॉलिटिकल साइंस? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊं? लेट्स सी। इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो ओके, मैक्सिमम बच्चे पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी, चैट में देखती हूँ मैं कितने बच्चों के पास
भी डेमोक्रेसी है, वी हैव टू economics, political science. Okay, final word from me. हम नेक्स्ट क्लास में आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस में आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, 2 क्लासेस लगेंगी मुझे एक चैप्टर खत्म करने में, ठीक है। हम फिर इकोनॉमिक्स को बंद कर देंगे और फिर हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, व्हाई आर यू सो वरिड, हमने सब कुछ पढ़ना है। मेरा यही मतलब था, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इकोनॉमिक्स में फ्लो बना हुआ है, तो इकोनॉमिक्स को समझा है अच्छी तरह, तो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के खत्म कर लेंगे। हिस्ट्री जो है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेंथी, तो हिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हाफ टर्म का सिलेबस हम 2 चैप्टर्स जो है वो सारे के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ओके, नाउ द टाइम इज आल्सो ओवर, तो आई एम गोइंग टू, आप पहले मुझे ये बताइए, आप सबको डेवलपमेंट समझ आ गया अच्छी तरह से? गुड। आर यू ऑल रेडी फॉर द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? गुड, thank you so much beta. I can see kids are saying no too, but I have to take a decision, right? तो हम इकोनॉमिक्स का ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपकी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर देंगे, ओके। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, राइट? बाय एवरीवन, थैंक यू।